अतुलं तत्र तन्तेजः सर्वदेवा शरीरम् एकस्थं तद्भुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा ओम शांति। अर्थात सभी देवताओं से उत्पन्न हुआ और तीनों लोकों में व्याप्त वह अतुल्य तेज जब एकत्रित हुआ तब हुआ नारी का निर्माण। कोमल है, सुंदर है तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है, सुंदर है तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माता पिता का गर्व और सम्मान है बेटी, हर माता पिता का गर्व और सम्मान है बेटी। सुप्रभात आदरणीय डायरेक्टर सर श्री बीबी गुप्ता जी, प्रधानाचार्य श्री विविध गुप्ता सर, हेड मिस्ट्रेस मैम श्रीमती कविता मेहरोत्रा मैम, हेड सीनियर विंग श्रीमती नेहा गुप्ता मैम, कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स एवं मेरे प्रिय साथियों, आज बालिका दिवस के शुभ अवसर पर 6th ब्लॉक लेके आई है एक ऐसी प्रस्तुति जो इस दिवस को मनाने के साथ साथ इस दिन की महत्वता से भी हमें जागरूक करेगी। You mean awareness? But awareness about what, Tani? Don't you think we are already aware about all this? ओह वंशिका, जागरूकता का अर्थ सिर्फ जानकारी प्राप्त करना ही नहीं, अपितु उस जानकारी का सदुपयोग करना और उस पर अमल करना भी है। Yes, that makes sense. I do believe that awareness is like the sun. When it shines on things that transpond. So with this essence, let's proceed with our first insight for the day. The National Girl Child Day is celebrated in India every year on January 24th. It was started by Ministry of Women and Child Development and Government of India in 2008. The celebration of National Girl Child Day are focused on with the objectives to raise awareness on the rights of the girl child, bring the various atrocities that girls fight day in and out, promote and increase the importance given to education, health and well-being for the girls. Various events are organized all across the country to celebrate Girl Child Day and to promote their education, possession as well as equal status in our society. Through this campaign, the Government of India highlights the inequalities and problems related to the girl child. Several advertisements are run by the government on TV channels, local newspapers and radio stations giving the message of Save the Girl Child. Even NGOs take initiative to celebrate and spread awareness among the society to treat girls equally and educate them. Several programs initiated by our government are Beti Bachao, Beti Padhao, CBSE Udan Scheme, Dhan Lakshmi Yojana Scheme, National Scheme of Incentives to Girls for Secondary Education to save the girl child, their rights, nourishment, health and other issues. Now let's talk about its history. It was first initiated in 2008 by the Ministry of Women and Child Development. The purpose of this day is to spread awareness about the gender-based discrimination that girls face in our society and to bring change in the attitude towards them. The Indian government has taken several steps over these years to change this and improve the conditions of girls.
as a responsible citizen of our country, let us recognize the rights of the girls and also the problem they face around the globe to give them a better life and a better future. Let us work in synergy to make this dream come true. Happy National Girls Child Day! Wow, what a refreshing start of the day. It's rightly said that sometimes the small step in the right direction ends up being the biggest step in your life. Tiptoe if you must, but take that step. कहने को तो बेटी है सिर्फ एक इंसान, पर उस बेटी के हैं रूप हजार। कभी माँ बन रखती है पूरे परिवार का ध्यान, तो कभी वही बेटी कर देती है अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान। उस बेटी की तो व्याख्या है मुश्किल, पर कोशिश करना तो है अपना काम। तो आइए सुनते हैं एक अद्भुत काव्य प्रस्तुति कृतिका द्वारा। सुप्रभात, मेरा नाम कृतिका सिंह है और आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है तू ही धरा तू सर्वथा। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। तू बेटी है, तू ही आस्था, तू नारी है मन की व्यथा, तू परंपरा, तू ही प्रथा, तू माँ है, तू देवी, तू जगत की अवतारी है, तू सीमा है चैतन्य की, जीवन की सहन शक्ति है, तू ही तो इस धरा का संतुलन, तू ही मन की भक्ति है, तू वंदना, तू साधना, तू शास्त्रों का सार है, तू चेतना, तू सभ्यता, तू वेदों का आधार है, तू लहर है सागर की, तू उड़ती मीठी पवन है, तू कोश है खुशियों का, इच्छाओं का शमन है, तुझसे ही ये ब्रह्मांड है और तुझसे ही सृष्टि है, तुझसे ही जीवन और तुझी से ये वृष्टि है। उठ खड़ी हो पूर्ण शक्ति से, फिर रोशन कर दे जहां, या प्राप्त कर ले अपने अधूरे सपन को, आज सुकार में बदल दे इस अकाल को। तू ही तो भंडार स्मृत शक्तियों का, प्राणी देह में भी संचार है तेरे लघु का। धन्यवाद। Wow, what a breathtaking performance it was. It immensely touched our hearts. Don't you agree, Daddy? हाँ, वाकई ही एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवृत्ति थी। एक मनुष्य की विविधता ही उसे अनोखा बनाती है, पर जब उसी विविधता द्वारा एक इंसान को वर्गों में विभाजित किया जाता है, तब वही विविधता असमानता का रूप ले लेती है। तो आइए देखते हैं एक कहानी उस असमानता को मिटाने का संघर्ष करने वाली। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। जहाँ एक घर में माना गया बेटी को खुशियों की दुनिया, तो वहीं दूसरे घर में ना मनाई गई बेटी की जन्म की खुशियाँ। बेटी के प्यार को कभी आजमाना नहीं, बेटी के प्यार को कभी आजमाना नहीं। बेटी फूल है, उसे कभी रुलाना नहीं, बेटी फूल है, उसे कभी रुलाना नहीं। पिता की आंखों का अभिमान है बेटी, पिता की आंखों का गुमान है बेटी, जिंदा रहने की पहचान है बेटी। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ
इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। सच कहते हैं, ख्वाबों में आता है नजर इच्छाओं और हकीकत के बीच का अंतर। जहां एक और हुए किसी के सपने पूरे, तो वहीं दूसरी ओर किसी के ख्वाब रह गए अधूरे। A woman with a book and a pen has the power to move the nations. A woman with a mind and a voice has the power to change the world. Our boys and girls are no less than a miracle in what they desired and achieved in their lifespan. Let's see what the story unfolds ahead in the lives of Riddhi, Sanskriti and Ruhan. Passengers for flight KL723 to Paris, please go to gate 23. जहां माँ बाप ने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे के भविष्य को संवारने के लिए लगाई, तो वहीं घर पर अचानक ही आर्थिक संकट की स्थिति बनाई। घर की स्थिति देख बेटी ने मन में ठानी यह बात, चाहे कुछ भी हो जाए दूंगी मैं अपने परिवार का साथ। दुकान की कमान को बेटी ने फिर लिया अपने हाथ और देखते ही देखते बेहतर हुए कारोबार के हाल। हेलो, कैसी हो माँ? और घर पर सब कैसे हैं? बेटा, यहाँ पर सब ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हारी बहन ने सब अच्छे से संभाल लिया है। और तो और
जब से तुम्हारी बहन ने दुकान संभालनी शुरू की है, तब से हमारी दुकान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। अच्छा माँ, ठीक है, रखता हूँ। अपना ख्याल रखना। कुछ सालों बाद कामयाब हो जब बेटा आया घर वापस, जानकर भावुक हो उठा कैसी हो गई थी परिवार की हालत। भाई ने किया बहन का शुक्रिया और बढ़ाया उसका मान और अवगत कराया लोगों को कि वाकई में बेटा बेटी है एक समान, बेटा बेटी है एक समान। परिवार तो एक मेरा भी है, पर आज तूने जो किया उसको करने की शायद मैं हिम्मत कभी भी नहीं जुटा पाता। अगर आज तू ना होती मैं अपने करियर पे भी फोकस ना कर पाता। धन्यवाद बहन। अरे भैया, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूँ। कहने को जानती है ये पूरी दुनिया, पर वक्त आ गया है कि हम बदल जाए अपना नजरिया। तो आइए बेटा बेटी के एक समान के कथन को निकाले अपने विचारों से और लिख दे इस समाज के भविष्य के सुनहरे पन्नों पर। शायद तभी सही मायनों में आएगी विचारों की स्वतंत्रता, जो मिटा देगी बेटा बेटी के सारी असमानता। जब बेटे ने चलाना चाहा घर को, तब बेटी ने भी संभाला पूरे परिवार को। कौन कहता है बेटा बेटी नहीं है समान, आखिर दोनों ही तो रखते हैं माता पिता का मान। शायद ये दुनिया कुछ होती अधूरी अगर किसी एक का भी अस्तित्व न जानता है संसार। वही इंसान ही है सर्वज्ञानी जिसने जान लिया यह ज्ञान, बेटा बेटी एक समान, बेटा बेटी एक समान। It is time that we all see gender as a spectrum instead of two sets opposing idols. A gender equal society would be one where the word gender does not exist, where everyone began themselves. इस दुनिया को दूसरे मौके की जरूरत नहीं, दूसरे नजरिए की जरूरत है। मौका उसका जिसने छीना, गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा अंबर जीना जीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही दो बार सोचना क्यों। यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। कोई तो वजह है जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने। यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। ललकार की घड़ी है ये बेकार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही दो बार सोचना क्यों। जब बेटे ने चलाना चाहा घर को, तब बेटी ने भी संभाला पूरे परिवार को। कौन कहता है बेटा बेटी नहीं है समान, आखिर दोनों ही तो रखते हैं माता पिता का मान। शायद ये दुनिया कुछ होती अधूरी अगर किसी एक का भी अस्तित्व न जानता है संसार। वही इंसान ही है सर्वज्ञानी जिसने जान लिया यह ज्ञान, बेटा बेटी एक समान, बेटा बेटी एक समान। लड़कों जैसी लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं,
आंखें उनकी लड़कों जैसी पैदा होते खुलती हैं। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती। बेटियां बेटियां बेटियां, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियां दोनों एक जैसी, करते मन मानियां दोनों एक जैसी। दादा की जड़ी दादी का चश्मा तोड़ती है, दुल्हन के जैसे माँ का आंचल ओढ़ते हैं। भूख लगी तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंदर, फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती हूँ। बेटियां 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 बेटियां। रब का हसीन तोहफा है ये, सौगात है ये बेटियां। खुशहाल है वो घर जहां, आबाद है ये बेटियां। इस मुल्क की इस देश की बुनियाद है ये बेटियां। तू खुश नसीब है जो तेरी औलाद है ये बेटियां। बचाए बेटियां, आओ पढ़ाए बेटियां, आओ बचाए बेटियां, आओ पढ़ाए बेटियां। A leader is the one who light up the path to the impossible and take those who follow to great height. It is an injustice to proceed with the 6th Block Special Assembly without calling upon our pillar of strength, our wings of flight, and our constant source of motivation. Now, I cordially invite our respected Principal Sir, Mr. Vivek Gupta Sir, to accept the token of gratitude to come up and enlighten us all. Greetings, everybody. Every year, 24th January is celebrated as National Girl Child Day in India. Today, the daughters of our country are excelling in almost every field and are making us proud. The reason for celebrating this day is to make everyone aware about the rights of a girl child and how we can build an equitable society. Today's assembly was very effective in the sense that it enunciates and highlights the importance of gender equality. I can very strongly say that the women-led development will pave the way for self-reliant India, the Atmanirbhar Bharat, the vision of our Honorable Prime Minister Sir. The contribution of women in the growth and the history is quite visible. We should place faith, maintain dignity and respect women in order to have harmony in our nation and not neglect gender equality. Let's break the stereotypes because the world needs strong women. Women who will lift and build others, who will love and be loved, who will live bravely, both tender and fierce. Women of indomitable will. I once again convey my best wishes to 6th Block for putting up their assembly so beautifully. Congratulations to all of you. Thank you so much. Thank you, sir. Your words really inspired us all and encouraged us to succeed in our life.
6th block conclude their special assembly. Thank you.